Yeah. Priyanka? Yeah. Okay. Yes, ma'am. So good afternoon, everyone. On behalf of PHF, I welcome each one of you to this session of Guruji Ke Saath Guruvar Part 2. And this is Dr. Manisha Soni, your host for today. So as you all know that this is the first Thursday, first Guruvar, and we all know who the speaker is. But for those who have joined for the first time, let me take you through a brief introduction. So our speaker today is none other than Dr. Liaquat Namole sir, a very beloved friend, a guide. He has passed his education from Motiwala Homeopathic Medical College and completed his masters from Beard College. And he has a rich and a vast experience of more than 30 years. And he is a pioneer of PHF, this platform where we all are. He is very famous for his online teaching and has, successfully conducted over more than 500 webinars. And friends, what you are going to hear from today is a homeopath who's very, very passionate about homeopathy. He's very creative, a genius, I would say. And the best part about him is the simplistic teaching with which all of you are going to be enthralled. And, without wasting even a moment, I would suggest that please, keep your phones on silent, have an open mind and really stay focused to get the best out of Liaquat sir. So let's unmute ourselves and welcome sir. Thank you. Welcome Dr. Liaquat. Let's learn something very new from sir today. Thank you. This profuse introduction comes from nobody else than a darling sister always. Very biased. Genius calling me genius. I wish my wife is hearing this. No, genius. I mean, in fact, I didn't mention about the gestures because that itself is nothing less than a work of a genius. So, and I can say that very well because I'm the testament to it by using so many gestures, in my own practice. So that's the reason, just genius is the right word. Over to you. So nice. Yeah. Hello, guys. I was going to take some other remedy. Let me confess. But the thing is, because of scarcity of time, I was not well for last 3 days. I was taking rest, so I could not make the PowerPoint of what I was going to take. Okay. So, but anyways, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. I am going to take a remedy, very simple remedy, I must say, but again, not much used the way I use it. Okay. And few of my friends, of course, they also use it. And people who are associated with me in my lectures, they are also using it quite well. But rest of the world, I've seen not using it as it should be used, as frequently it should be used, and really used to cure than palliate. Okay. I have had wonderful, wonderful results with this, wonderful results, especially in cases of sciatica, dysmenorrhea, cancer uterus, migraine. Yes, very much in migraine and in hypothyroid. Okay, hypothyroid तो वैसे मेरा बहुत favorite topic है. बहुत ही मेरी बच्ची Dr. Panita, as everybody knows that she's my child. So she's doing PG in hypothyroid, right ना बेटा Panita? तो उसका PG का topic भी यही हाँ तो coincidences ऐसे होते हैं है ना? Anyways, but thyroid हमारा ये है क्या कहते हैं उसको फोटे है बहुत ज़्यादा. Because we deal with them, we diagnose subclinical hypothyroidism also very easily. We do not really ask the patient to do the T3, T4, TSH. Because many cases of hypothyroid, in my experience, around 20% of the hypothyroid cases, blood reports do not come abnormal. Okay. Nowadays, these people have started using thyroxine on subclinical hypothyroidism also in cases where even then they do free thyroid, free radicals, FT3, FT4, FTSH. Nowadays, that's a trend. Okay. But
we don't do that much. Anyways, coming to today's case, if you have read the case in if you have read the case which I posted, I'll read it for you so that it becomes a little easier, and then I'll talk about some more cases. Okay, so let us understand. This case is a man of 35. I remember. Okay, he's 35. He was 35. That now he must be 45, 46, 47. Yeah, it's come to me with right sciatica. He's a truck driver. On the bricks and sand रेती की ट्रक पे ये गाड़ी चलाता है. Okay, is known to me from a long time. I started my practice from my village. That was in 1995. I started my practice. 94, end of 94, in the village where I'm born, and his village I used to go visit. Okay, which is again a very small village. Okay, so I know him well, his family well. His mother passed away when pretty young. I don't remember his mother actually, his actual mother. What I remember is his stepmother. Okay, but she's a naive lady, very sweet lady. Stepmother is a very sweet lady. The stepmother, I think, got better with herself. Okay, very sweet lady. They have छोटी सी खेती है. छोटी सी खेती भी वो लोग करते हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं, बहुत छोटी, आधा एकड़ वगैरह होगी. Family is big family. There are two brothers, and from his stepmom, they have two sisters. Two brother, one sister, and then two more. So they have 5 offsprings. Father, simple man, used to travel on bicycle from the village to Nasik road, जहाँ पर प्रेस है, नोट छपती है ना जहाँ पर, तो वहां पर वो साइकिल पे आते थे, बीड़ी पीते थे अंकल. अभी he passed away some 2 or 3 years back. So he lived quite long. Okay. So he got married, remarried. So this man, the boy has a stepmom. Okay. But the lady is very nice. I never felt that she is the stepmom. From both the sides, even from the mother's side, even from the patient's side. Both the brothers and even the sister. They love the mother. I used to know, maybe she's alive. So they love the mother as real mother. They take care of the sisters also as very real sisters. Okay. His daughter, very intelligent girl, Nakshamika, my patient only. They got him married. They got her married to his sister's son only. मतलब बहन के बेटे को देने का रिवाज है महाराष्ट्र के अंदर, है ना, अपने इधर. तो महाराष्ट्र में भांजे को बेटी देते हैं, ज्यादातर ये होता है. मामू की लड़की करते हैं, तो इसकी बेटी उसको दिया, और वो बेटी had some conflicts, and she got separated. So there was huge tension. In fact, मैंने उनके अंदर क्या करते उसको मेरिएट भी किया था. ठीक है, तो ये हिस्ट्री है बच्चे का. ये मैं बताया इसके लिए क्योंकि मुझे ये पता था ये जो चीजें चल रही थी, क्योंकि मैं विटनेस हूँ इन चीजों का. तो वैसे ये लोग बीइंग अ फैमिली डॉक्टर, तो ये लोग कंसल्ट भी करते हैं, तो मुझे ये सब चीजें अंदर की पता है. फर्स्ट टाइम एक चीज है बस, सिंपल. तो ये मेरे पास में आया विथ राइट साइड का. बहुत दर्द होता है, पेन किलर लेता था, एक्सरे भी निकाला था सिविल हॉस्पिटल में. तो एक्सरे में भी स्पॉन्डिलाइटिक चेंजेस है, काफी थे. तो मैं इसको बोला कि अभी दवाई लो, है ना. फॉर मी द मेडिसिन वाज क्लियर, बिकॉज आई आस्क्ड हिम, बोला क्या तो थोड़ा आराम कर लेना. सी, दिस इज हाउ वी डू. वी टेक द केस वेरी इनफॉर्मली. हाउ इज दैट, हम लोग थोड़ा सा ऐसे नहीं बोलते पेशेंट को कि फिर आप आराम क्यों नहीं करते वगैरह, ये नहीं. हम लोग सलाह देते एज अ नॉर्मल कॉमन ह्यूमन बीइंग. प्लीज रिमेम्बर, जैसे हाउ टू टेक द केस वाला एक जो मसला अपना है, वेयर वी फेल, होम्योपैथ वेयर वी फेल is here we fail. We do not talk like a common person. We behave like doctors. तो सबसे पहली शर्त ये होती है, if you read my book also, I have written in case papers, case taking part of it, I have written that forget that you are a doctor. Just remember that you are a common human being. Human being, remember, being human वाला common human being हो रहा है तुमने. मतलब you have to be being in the present continuous state. जिंदा अवस्था में रहना है. At any point of the time, you should not cease to remain like a human being.
ओके, तो देन यू एडवाइस अकॉर्डिंगली, भाई थोड़ा आराम कर ले अभी। मैं उसको बोला यूनुस थोड़ा आराम कर ले, क्यों ये कर रहा है तो, थोड़ा आराम कर ले। तो डॉक्टर साहब कैसे आराम करूँ ना, आपको तो पता है काम तो करना है। ओके, ओके, दिस इज द केस, so let us discuss, and then I'll explain you how to artistically come to this remedy. Okay, so I did not ask the type of pain and all because it didn't feel much necessary for me. One more case I'll tell you. It was in my senior days, around 25 years back. I stopped the practice there something like 20 years, 15, 20 years back. This is 2025, right? So I stopped the practice 2008. 2010, I stopped the 15 years and 5 years before that. So 25 years back, I had a case, old lady, slim lady, fell down, okay, from a very poor socio-economic class. Fell down, she came with literally इतनी झुकी हुई आई कि डॉक्टर साहब मेरा मराठी में शेयर हो तो डॉक्टर साहब मेरा मन का टूट गया, ओके, रीढ़ की हड्डी टूट गई, वाज ऑलमोस्ट लाइक दैट। एंड मुझे मतलब देयर वाज नो पॉइंट इन डूइंग ऑपरेशन एंड ऑल दैट बिकॉज 25 years back, just imagine the state of medical practice in Maharashtra, that too Simnar, and she is from a remote village in Simnar. So she came to me, डॉक्टर साहब बहुत आज से तुम्हारे पास आई मैं, तुम्हारा नाम सुना था, हिंदी में बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे को याद है ये केस, आई स्टिल रिमेम्बर, इट्स 30 years, almost 25, yeah. I was recently married that time. My wife used to accompany me that time, 25, 27 years back. And looking at her Marathi, my wife used to laugh that time. She did not, because they used to use very funny words. So this is the case, she said. बोला फिर क्या टेंशन क्या है? टेंशन आएगा नहीं, कर सब काम मुझे ही करना है, घर में कोई नहीं है, बेटा है उसकी शादी नहीं हुई है, मतलब शादी टूट गई है उसकी, एक पहली जो थी, काम मुझे ही करना है, बुढ़ा भी है, हर वर्ड वाज मातारापन है, मतलब बुढ़ा भी मतलब हस्बैंड भी है। गांव में हस्बैंड को और बाप को बुढ़ा बुलाते हैं, ठीक है, या नॉर्थ इंडिया, प्लीज इन इंडिया, आई एम स्पीकिंग इन हिंदी अनिल। तो बुढ़ा भी है, तो उसने बोला कि बुढ़ा भी है, ठीक है, मतलब हम लोग इधर हमारे यहाँ पर स्पेशली जो एरिया हम लोग रहते हैं नॉर्थ महाराष्ट्र में, हमारे इधर बाप को बुढ़ा बुलाने की आदत है, माँ को बुढ़ी बुलाते हैं हम लोग। महाराष्ट्र में मातारा मातारी बोलते हैं महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में, एंड हिंदी स्पीकिंग हम लोग बुढ़ा बुढ़ी बोलते हैं माँ बाप को। तो और हस्बैंड को भी बुढ़ा बोलती है औरतें, है ना, मातारा, और बीवी को मातारी बोलते हैं, मतलब बुढ़ा बुढ़ी, ठीक है। तो उसने बोली बुढ़ा भी है, तो मैं क्या करूँ, काम तो मुझे करना ही है, और तुम ही ठीक करो, मैं किसके पास भी जाऊंगी, तुम्हारा नाम मैंने सुना, कुछ भी करो मुझे ठीक करो। माय गॉड, ये मुसीबत। आप सोचो ना, उस वक्त मेरे माइंड में इतना नहीं था, इनफैक्ट बहुत थोड़ा थोड़ा माइंड यूज करता था, फियर बिट्रेयल वगैरह वगैरह ऐसे थोड़े थोड़े साइकिल सर की किताबें थोड़ी सी पढ़ी थी, और एक्सप्लोर कर रहा था मैं अपने आप को ज्यादा उस वक्त, जैसे अभी भी कर रहा हूँ। तो उस वक्त भी आई वाज एक्सप्लोर, ट्राइंग टू एक्सप्लोर, और उतना पैसा तो था नहीं तब, तो साइकिल के सेमिनार वाज लाइक बियॉन्ड रिच, 5 स्टार में लेते थे बड़े साइकिल साहब। तो दिल्ली जाना तो बहुत दूर की बात थी हमारी उस वक्त, सोच भी नहीं सकते, 25-30 साल पहले फाइनेंशियली आई वाज नॉट वेरी वेल ऑफ, अलग निकल चुका था पिताजी से, तो खुद का क्लिनिक भी ले लिया था, खुद का मकान भी ले चुका था, तो पॉसिबल ही नहीं था। तो किताब पढ़ के थोड़ा सा, और फिर 10 का माइंड सेक्शन, तो मैं जैसे ही पास आउट हुआ था डीएचएमएस, मेरे ख्याल से पास भी नहीं होता, एग्जाम होने के बाद में सब दोस्त लोग जब चले गए, मैं लोकल आई था, तो दैट आई स्टार्टेड विद माइंड सेक्शन ऑफ केन सेपरेट, आई स्टार्टेड राइटिंग द मीनिंग्स ऑफ इट, आई स्टिल हैव दैट रेपर्टरी, उसके अंदर जिसमें मैंने मीनिंग्स लिखे, तो आई वाज एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ दैट। सो दीज आर द टू केसेस आई विल टेल यू। अभी आप बताइए क्या पॉसिबल है, व्हाट इज द पॉसिबल रेमेडी, अनम्यूट कीजिए और Both बोलिएगा। both the जी, cases are daily wages. So I feel calcarea floor. या गुड थिंकिंग, यस, व्हाट एल्स? तो हाउ यू रीच्ड कैलगरी फ्लोर बेटा?
दोनों को काम तो करना ही है, हाँ काइंड ऑफ वो नहीं काम करेंगे तो खाने पीने के वांदे हो जाएंगे. हाँ, So that was my thought process. बट खाने पीने के वांदे हो जाएंगे ऐसा उन्होंने बोला क्या? नहीं बोला नहीं, बट यू अंडरस्टैंड द सोशियो इकोनॉमिक नहीं, कंडीशन ऑफ द. तो दिस इज नॉट अंडरस्टैंडिंग माय चाइल्ड. ओके. दिस इज कॉल्ड ओके. प्रिज्यूमिंग. हाँ. बीना, बीना ना, दिस इज डॉक्टर बीना यस. राइट? या. या. या या. तेरी आवाज पहचान गया बेटा, सॉरी. आवाज पहचान गया मैं. थैंक यू. Yeah. So see, I know how you went to a calculator floor. Okay. Hello. Am I audible? Yes, 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 sir. Yes. Let me share the screen. Okay. And we'll go to the repertory. Okay. We'll go to the repertory. I'll share the screen and then we'll see. ठीक है. तो कैलकुलर फ्लोर पर आप लोग कैसे जाते हैं ना, डेली वेजेस बोला तो हमारे मन में दो रूब्रिक आते हैं. एक आता है डिलीजन पुअर और दूसरा आता है फियर पॉवर्टी, है ना. ये कॉम्बिनेशन हम लोग लेते हैं, डिलीजन पुअर फियर पॉवर्टी, डीपीएफपी हम लोग उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन. ये हम लोग का पुराना थोड़ा सा एक तरीका था रेमेडीज को समझने के लिए. डिलीजन पुअर फियर पॉवर्टी, है ना. तो उसमें आता ब्रायनिया, सेपिया, कैलकेराफ्लोर, सोरेनम, बैम्बुजा, जिंको बिलोबा, नक्सोमिका एंड सल्फर, है ना. ये 8 रेमेडीज उसमें आती है. जिंको बिलोबा अभी ऐड हुआ है, पहले जिंको बिलोबा नहीं था. तो एनीवेज, तो दीज आर द 8 रेमेडीज. प्रीवियसली 7 रेमेडीज यूज्ड टू कम. इसके अंदर हम लोग डालते हैं कि फियर फैमिली विल स्टार्ट, बराबर ना, खाने पीने के वांदे हो जाएंगे. तो फियर वो क्या था, डिलीजन स्टार फैमिली विल. तो ये जब डालते हैं ना तो खाने पीने के वांदे हो जाएंगे. ये फिर देखो आप में आता है सेपिया, डिलीजन फैमिली विल स्टार. हाँ, इसमें अगर आप एंजाइटी चिल्ड्रन डाल रहे हो कि बच्चों की चिंता है, मुझ पर डिपेंडेंट है ना, दे आर डिपेंडेंट ऑन मी, तो देन कम्स व्हाट, सल्फर एंड सेपिया. सल्फर पहले डिलीजन पुअर में नहीं होता था, पर इवन देन सेपिया कम्स, है ना. फियर स्टारवेशन भी ले लो आपने कि भूखे मर जाएंगे भैया अपन, तो भी भूखमरी का डर भी अगर आप ले रहे हो तो भी डिलीजन पुअर फियर पॉवर्टी को जोड़ के सिर्फ सेपी आता है. तो खाने पीने के वांदे हो जाएंगे डॉक्टर साहब, ये बोलने वाले लोग जब आते हैं ना, तो फियर स्टार्विंग लेने का या फिर डिलीजन फैमिली विल स्टार, ये लो आप. हाँ, अब वो फियर वर्क ऑफ वर्क डेली, पर रोज के काम कैसे कर पाऊंगा, तब फिर नक्स और कैलकुलर फ्लोर आता है. देखो अगर आप ये 3 रूब्रिक्स को हम लोग हटा दें, है ना, तो डॉक्टर साहब रोज के काम की फिक्र लगी रहती है कि कैसे काम कर पाऊंगा मैं. छोटे छोटे कामों की भी अगर फिक्र लग जाए तो डॉक्टर साहब मेरे से साधा चम्मच नहीं उठ रहा है अभी, तो मैं तो 4 लोगों के घर पे काम को जाती हूँ, तो कैसे करूंगी. देन कैलकुलर फ्लोर एंड नेक्सोमिका कम्स इनटू प्ले. आर यू गेटिंग मी? हेलो. Yes, sir. Yeah, and then they start getting affected. Then they're, है ना, क्योंकि जिम्मेदारी रहती है. तो क्या तकलीफ होगी इसको, जिम्मेदारी अगर है तो, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी पेन का जाएंगे इशू है, शोल्डर. Yes, shoulder शोल्डर में pain प्रॉब्लम और है. back pain. The शोल्डर lower back support जाएगा ना, lower back. नहीं बेटा, शोल्डर. Okay, okay, okay. लोअर बैक तो फाइनेंशियल स्ट्रेस, Yes, sir. Okay. है All. ना. Yes, yes. शोल्डर Thank पे you. आएगा, तो इसीलिए तो कैलकेरिया फ्रोजन शोल्डर के लिए यूज करते हैं ना ज्यादा. फ्रोजन शोल्डर में कैलकेरिया फ्लोर इसीलिए तो आता है कि पावर्टी है और कर नहीं पा रहा हूं, देन कैलकुलर फ्लोर कम्स. ठीक है, गॉट इट नाउ. Yes, sir. या
एक और रूब्रिक है ना भाई इसका, डिल्यूशन वांट ही विल कम टू। यस एग्जैक्टली। तो उसके अंदर सल्फर और कैलकुलर फ्लोर है, बराबर ना? उसमें सल्फर और कैलकुलर फ्लोर है। एंड आई हाँ थिंक जी। अंबुजा भी आया है शायद अभी उसमें ना, शायद 5 लोग ऐड है उसमें, हाँ डलका वाला भी उसमें, राइट। एग्जैक्टली। ट्रीटी कम भी है, हाँ ट्रीटी कम है, राइट। तो सल्फर भी है उसमें। फियर स्टार्विंग और वांट ही विल कम टू, ट्रीटी कम भी आता है फिर। अभी तो खैर एक और थोड़ा सा और ज्यादा इजी भी हो गया। एनीवे, so this is how calculus flow. So this is not calculus flow. Now what else can you think about? बोलो। आपको तो पता है डॉक्टर साहब, काम तो करना ही है मुझे। और तो उसने और एक चीज क्या बोला पेशेंट ने कि मैं को जब से समझ में आ रहा है तब से मैं ड्राइविंग ही कर रहा हूँ, तो दूसरा काम तो मुझे आता नहीं, और खेती बाड़ी भी है नहीं है। और और ओल्ड लेडी के केस में क्या था कि बेटा है, डिवोर्स हो चुका है, और बुढ़ा भी है। तो मतलब बीइंग अ फीमेल इन द फैमिली, शी इज द ओनली फीमेल हु हैज टू वर्क इन द हाउस। एंड बड़ी आस से मेरे पास आई है, और तू ही मुझे ठीक कर, ये भी समझो तुम। पहले वाली केस में भी क्या था कि सर ऑपरेशन तो मेरे से होगा नहीं, ऑपरेशन से तो ठीक नहीं होता, उतना आराम भी नहीं कर सकता नहीं, ऑपरेशन करेगा तो आराम विराम करना पड़ेगा ना उसको। तो पहले वाले के पास में ऑप्शन है सर्जरी का, बट सर्जरी के बाद में परहेज करना पड़ेगा, बहुत चीजें करना पड़ेगी जो पॉसिबल नहीं है करना। तो उसका भी एक्सपेक्टेशन था कि बीइंग फैमिली मैटर, आई ओनली ट्रीट हिम एंड आई ओनली गिव हिम द रिलीफ और हील हिम। यस, बोलिए। बहुत मजा आएगा आज के केस में, अगर आप लोग बात करोगे ना, बहुत मजा आएगा जी। तो यहाँ पे हम कैरेट डिजायर टू बी कैरेट लेंगे, क्योंकि वो आपसे कैरी होना चाहते हैं आप ही कि करो। आप ही करो। आप ही आप ही करो बोले करो। तो कैसा लगता है ना कि भाई गले पड़ गया ना, कि तुम ही करो। वेरी गुड। हम्म। समझ रहे हो? बेगिंग, बेगिंग भी ले सकते हैं। बेकिंग नहीं। बेगिंग नहीं। नहीं। ओके। बेगर का ओके। कैसा रहता है, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। सर क्लिंगिंग ले सकते ओके। हैं। ओके। समझ रहे हो? ओके। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। यस बेकिंग यस। थोड़ा तो भिखारी को मत नजर करो ना, है ना? या। ओके। बहुत सिंपल है समझना चीजों को। तो कैरेट डिजायर टू बी तो मार्क्ड है ना? बराबर ना? और बड़ी आस से आपके पास आए हैं। दूसरी वाली लेडी का, दोनों को मिला के अपन चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैरेट डिजायर टू बी कैरेट। ओके, और सर क्लिंगिंग ले सकते हैं इसमें। क्लिंगिंग। वो जबरदस्ती गले पड़ रहा है। हाँ बेटा, क्लिंगिंग व्हाट? हाँ, जबरदस्ती मतलब आप ही करो, मतलब तो आप ही क्लिंगिंग कर ग्रास सकते हो। है हाँ। ना, गले पड़ रहे हैं। हाँ हाँ, गले पड़ रहे हैं। तो दोनों को अगर लगे तो देखो, आर्सेनिक, एंटीमटाट, फास्फोरस, पल्सटिला, और बड़ी आस से आपके पास आए। कि तो होपफुल नहीं हो गया कि होप लेकर आए हैं कि आपके यहाँ से तो ठीक हो ही होपफुल जाएंगे। मतलब वो तो फुल ऑफ होप होता है। ये हम्म। आपके पास आए हैं, ये इसका मतलब क्या है? होप तो है, बट आपसे होप लेकर आए हैं। आपसे बहुत होप है हमको, ऐसा नहीं है। हम आपसे बड़ी आस लेकर आपके पास आए हैं, ये चीज को आप समझो थोड़ा सा। सर वो बरोबर गॉड ना? समझ रहा है क्या? हम्म। गॉड समझ रहा है क्या, आप ही कर सकते हो? नहीं ऐसा नहीं है कि आप ही कर दो, ऐसा नहीं है। बड़ी आस लेकर आपके पास आए। हाँ तो पुष्पा, यू आर राइट। पुष्पा ना, डॉक्टर पुष्पा, राइट? नो, दिस इज डॉक्टर कृषि शर्मा। किसने बोला गॉड समझ रहे? सर डॉक्टर ममता। डॉक्टर ममता। ओके। यस ममता, टेल मी। ममता कोटेचा ना? नो? न्यू फर्स्ट ज्वाइन, फर्स्ट और टाइम आई ज्वाइन किया। ओके, ग्रेट ग्रेट। व्हाट्स योर फुल नेम ममता? ममता भौतेकर। ओके, माय यंगर सिस्टर्स नेम इज ममता। फ्रॉम मध्य प्रदेश। यस ममता, टेल मी। गॉड समझ रहा है, ओके। हाँ और बेटा, वेरी नाइस, यू आर थिंकिंग वेरी गुड। हाँ, सर, गॉड आपके समझ रहा है। पुराने वीडियोस में मैंने देखा था ऐसा कि एक पेशेंट आके ऐसा बोलता है कि आप ही कर सकते हो, तो आपने उसमें लिया था गॉड।
गॉड वाला रूब्रिक कुछ। लेकिन इसने ऐसा नहीं बोला ना ममता कि आप ही कर सकते हैं। आपसे उम्मीद लेके आए हैं। हाँ, तो उम्मीद और आपसे, और बड़ी उम्मीद। यस सर। तो बड़ी उम्मीद का मतलब क्या है? मतलब एक गॉडली इंसान, या जहां पर उसको आस है कि भाई इससे मुझे आस है। समझ रहे हो? अब जहां जहां जीवन में आपको आस लगती है, होप लगता है, यस सर। तो होप के लिए, आस के लिए आप अलग अलग क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते हो? वो ढूंढो, सिंपल। अच्छा, होप के अपोजिट क्या है? होपलेस। होपलेस। यस। होपलेस। बराबर ना? आस के अपोजिट क्या है? निराशा। निराश। निराश। है ना? तो ढूंढो फिर अभी। और निराशा को आप लोग और क्या क्या उपमाएं देते हो? क्योंकि मैं लिखता हूँ पोएट्री, तो मुझे फटाफट समझ में आती है उपमाएं। आप लोग उपमा को क्या कहते हैं आप लोग अंग्रेजी में? मुझे नहीं आता है। हाँ निशु, उपमा को क्या बोलते हैं आप इंग्लिश में? जैसे चांद सा रोशन चेहरा। मेटाफर। हाँ, मेटाफर। मेटाफर बोलते हैं क्या उसको? अच्छा। एडजेक्टिव्स बोलते हैं ना उसको। क्या बेटा? एडजेक्टिव बोलते हैं ना सब। एडजेक्टिव्स। अच्छा, एडजेक्टिव्स। हम लोग उपमा, अलंकार, अलंकार मतलब फिगर ऑफ स्पीच ना, आई थिंक। या एनीवेज, एनीवेज, तो आस, होप, और कहाँ कहाँ पे होता है? या उसके अपोजिट निराशा। निराशा के लिए क्या है, तो आशा के लिए आपके मन में आएगा, बोलिए। निराशा के लिए डिस्पेयर ले सकते हैं। और डिस्पेयर अलग वर्ड है। और अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। निराशा, डिस्पेयर, और गुड डिनर, गुड। व्हाट एल्स? मैं आपसे रेमेडी निकाल रहा हूँ, रूब्रिक भी आप ही से निकालूंगा इंशाल्लाह, तभी सही टीचर होगा मैं। यस मनप्रीत। ऑप्टिमिस्टिक। हम्म। ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक। तो होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव डिफरेंट ना डार्लिंग? सी, हम लोग ऐसा लेते हैं कि पॉजिटिव इज 100%, देयर इज नो नेगेटिव। ऑप्टिमिस्टिक इज 75% एंड होप इज 50-50। 50 पॉजिटिव, 50 नेगेटिव। ऑप्टिमिस्टिक में 75 पॉजिटिव, 25 नेगेटिव, एंड इन पॉजिटिव 100% पॉजिटिव, नो नेगेटिव। और क्या शब्द यूज करते हैं अपन? अरे मेटाफर कवि वाले शब्द यूज करो, सामान्य इंसान वाले शब्द यूज करो। निराशा के लिए डिसअपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और सादी भाषा में आप लोग। आज तो सर पूरा इट्स all ओके। neurons will be excited. यस यस। राधे श्याम, राधे तू बोल। Sorry. नो, राधे जी श्याम सर। बोल। जी सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम बेटा, बोल राधे श्याम बोल। हाँ, ये चील भी लेते हैं सर ना? है। मतलब चील चील ठंड पड़ जाना। हाँ, पेसिमिस्ट चिल लेते हैं। और नहीं, रेपर्टरी को छोड़ दो। सामान्य भाषा में आप लोग आशा के लिए क्या क्या शब्द यूज करते आशा के लिए सर। हैं जी? अच्छा, तो आशा के लिए। या निराशा के लिए? हाँ, तो निराशा के लिए बोल रहे थे पेसिमिस्ट और चिल हाँ, और ये सामान्य आप भाषा में। राधे, समझ। हिंदी में बोल। अच्छा अच्छा। हिंदी वाली भाषा हम्म, में क्या क्या यूज करते हैं? हम्म। सर मायूसी भी बोलते हैं। मायूसी, वेरी हाँ, गुड। ना और ना उम्मीद, नाउमीद। मायूसी। हाँ, नाउमीद। हाँ नाउमीद तो वही हो गया हाँ। ना। ना उम्मीद, होपलेस। हाँ। हरास को भी लेते हैं कि हार हाँ, गया। हताश, हताश। हाँ, और अश्विनी। सर निराशा के लिए हम अंधेरा ले सकते हैं क्या? अंधेरा ऐसे। आई लव यू बेटा,
आई लव यू। थैंक यू सर। मुझे पता है मेरी बच्ची बोलेगी। थैंक यू सर। तो राधे तेरे नाम में भी निराशा का था, राधे श्याम, श्याम यानी अंधेरा। और अश्विनी के नाम में मैं बोलने वाला था, इसका इसका सरनेम भोर है, तो मैं यहाँ बोलेंगे उजाला। जी सर, असली तो वही है, डार्क सर। होगा में। हाँ समझे? तो यस निराशा सर। मतलब अंधेरा, और आशा मतलब लाइट डिजायर। उजाला, लाइट डिजायर फॉर। समझ में आया? लाइट डिजायर फॉर। यस सर। यस बीना, देन ममता, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. और कौन था, कौन सा प्रीत था? मनप्रीत, है ना? समझ रहे हो? तो लाइट डिजायर फॉर, मैंने पढ़ाया हूँ लाइट डिजायर फॉर। आप पढ़ते नहीं हो, आप लोग, पता है, आप लोग सुनते नहीं हो लेक्चर्स मेरे, ध्यान से नहीं सुनते, नोट्स नहीं बनाते आप लोग। डॉक्टर साहब बड़ी आस लेकर आपके पास आए, तो सबसे पहले आपके दिमाग में लुब्रिक आने देना है लाइट डिजायर। लाइट डिजायर। लेकिन देखो, अभी जैसे वो गॉड वाला भी था, उसके अंदर प्लम्बम था, बराबर ना? ममता, Sir. देख, है ना इसमें प्लम्बम, इसमें भी है, उसमें भी था, है ना? ममता ने प्लम्बम का लेक्चर देखा था ना, ममता? Yes, sir. तो देखो, है ना प्लम्बम इसमें भी, लाइट डिजायर में। Yes, sir. कितने कोई भी लोग बोले डॉक्टर साहब बहुत आज से आपके पास आए, खत्म बात। और इसमें देखो क्या आ रही रेमेडी, बताओ। फास्फोरस। और इसमें सबसे मेन चीज एक आपको और पढ़ाना है कि ये लोग टोटली डिपेंडेंट ऑन मी है। इनको अगर कोई ठीक कर सकता है तो डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, बराबर ना? ऐसा इनका ये है मानना है, ये लोगों की धारणा ये है कि कोई मुझे ठीक कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, सही ना? हेलो? तो दिस इज डिपेंडेंट ऑफ द, हेलो, फिजिशियन, Other. Physician. Yes. डिपेंडेंट ऑन द फिजिशियन। अभी यहाँ पे फिजिशियन इसलिए यूज कर रहा हूं मैं क्योंकि क्वालिफाइड हूं। पहले वाले लेडी के अंदर एक, देहात के अंदर एक होम्योपैथ, मतलब जो सुपर स्पेशलिस्ट है उसके अंदर का, समझ रहे हो? कोई बाबा भी फिजिशियन हो सकता है, आप समझ लो, कोई मौलाना भी फिजिशियन हो सकता है, ये उसमें के तज्ञ है। अपन बोलते हैं ना कि अभी आलिम साहब की सलाह लेना पड़ेगी, आलिम मतलब उसके अंदर के एक्सपर्ट, आप समझ रहे हो? तो वो भी फिजिशियन हो जाते हैं जब उसके अंदर के क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो दैट ऑल्सो कैन बी फिजिशियन। आर यू गेटिंग मी? कि अब मुझे बस मेरे शाम ही ठीक करेंगे, है ना? So for Mira, Sham was a physician. Could be, not necessarily. मीरा जी तो अलग है, खैर, बट ये याद रखिए आप। तो फिजिशियन इज क्वालिफाइड, नॉट डॉक्टर, प्लीज रिमेंबर। डॉक्टर मतलब एनीबडी हु कैन रिपेयर, बट फिजिशियन विथ एक्सपर्टीज एंड कंप्लीट नॉलेज। सो दिस इज डिपेंडेंट ऑफ द फिजिशियन। तो दिस इज फास्फोरस। लेकिन है क्या फास्फोरस? हेलो, पट रहा है क्या मन को? नहीं हेलो? सर, नहीं phosphorus ना? नहीं लग रहा है। तो यहीं पर तो हमारी दुकान है ना फिर से। This is where the art of homeopathy comes. This is where you have to study homeopathy in depth now. Now you have to really read all the rubrics of phosphorus and phosphorus की कजिन्स है ना phosphorus के, क्या क्या है कजिन, भाई बहन कौन कौन से phosphorus के? सौतेले, सगे। हेलो, phosphorus के कजिन्स कौन कौन है? Acid phos, calcarea phos. मैटफॉस। समझ रहे हो? ये लोग डायरेक्ट कजिन्स है ना phosphorus के, पॉलीफॉस। समझ रहे हो? जिससे उनका बॉन्ड हो जाता है ना, कजिन्स बोलते हैं हम लोग, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बोल सकते। हाँ, बॉन्ड टूटता भी है तो यार रिलेशंस बोल सकते हैं, हाँ यार उसके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोल सकते हैं ना, क्या अपन इजी ना, क्योंकि बॉन्ड है, टूटता भी है ना, बॉन्ड थोड़ी पक्का रहता है। तो phosphorus bonds well with calcarea phos, acid phos, natrum phos, mag phos, kali phos and baryta phos
right? Recently, I happened to cure one case, got cured with Baraita Phos. Very, very beautiful case. Got better with Baraita Phos. मैं कभी बताऊंगा इंशाल्लाह. Very good case of hearing loss and impotency. Very good case, got better with this. तो ये गले पड़ने वाला अगर कोई आता है और चिपक रहा है और बहुत आज से तुम्हारे पास आया है, तो फास्फोरस तो एक मन में लाओ. अब उसका बाकी का जो चीजें हैं इर्द गिर्द जो चल रहा है उसके, उन चीजों को लेकर हम ढूंढेंगे. अब बताइए, इसको कोई सहारा नहीं है, बराबर है? हेलो, लेडी Yes, को sir. कोई Yes. सहारा है क्या? नहीं, she is sir. the kind of working against time बोल सकते हैं. मतलब she is at Exactly. this age she is earning. Exactly. Earning नहीं, मतलब she is doing the house chores only, but Okay. exactly, but exactly working against the time, perfectly used. So now what? And इसमें और उसमें क्या सिमिलरिटी है? दोनों को काम करना ही है. आप तो जानते हैं, दूसरे वाले को दूसरा कुछ काम आता नहीं है, लड़के को और दादी अम्मा जो है उनको ये है कि उनको करना ही है, मजबूरी है. बेटे का प्यार है, हस्बैंड का प्यार है, का मतलब दैट इज व्हाट इज द लाइफस्टाइल, दैट इज व्हाट इज द लाइफ दे आर बीइंग असाइंड. तकदीर ने बोलो, जिसने भी बोलो, ट्रेडिशन ने बोलो, वो जिंदगी उनको दी है, वो जीवन वो अपना जी रहे हैं उस तरीके से. हेलो, आप समझ रहे हो? अब बताइए, क्या कौन सी रेमेडी चलती फिर नजदीक से? सपोर्ट नहीं है तो क्या आएगा? कौन सा फास्फोरस है जो सपोर्ट चाहता है? कैलकेरिया. Califos. कालीफोस. क्या है? कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ, सपोर्ट, डिजायर्स, है ना? बट इसने कहीं भी सपोर्ट की बात की? No, sir. ये खुद ही खड़ी हो रही है. हेलो, Yes. बरो ना, सपोर्ट डिजायर्स की Yes, sir. कालीफोस है ना, ये देखो. और उसमें कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ, यहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी है क्या दोनों में भी? No, sir. Confidence sir. is not नहीं the sir. issue at all. Confidence is not the issue at all, right? The problem is, इसको पता है कि मेरी कमर की वाट लग रही है, बुढ़िया को पता है कि मेरी कमर टूट चुकी है. करना तो मुझे ही है. और कौन होता है जिसको सपोर्ट नहीं होता है जीवन में? बाम्बू सर. हाँ, बाम्बू सर. बैम्बूजा नहीं, फॉस्फोरस के इर्द गिर्द चलने वाले हैं अपन. फॉस्फोरस ही है रेमेडी, लेकिन कोई फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का ही कोई भाई बहन है? सर मैकफॉस को भी सपोर्ट नहीं होता. मैकफॉस. क्यों? सर उसमें एक रूब्रिक है ना, उसमें झक मार के उसी को करना है. कौन सा है मुझे रूब्रिक? सब मुझे ही करना है. डिल्यूजन, डाई, शी मस्ट. समझ रहे हो? सर दिस इज क्लियर कट मैकफॉस कि मुझे ही मरना है डॉक्टर साहब. मतलब मेरे नसीब में जीना नहीं है. समझ रहे हो? झक मार के मुझे ही मरना है. और एक इश्यू बताइए, किसको मां नहीं होती ना? मैक बोल तो क्या मां नहीं है? क्योंकि ऐसे वक्त में, बीमारी में, आपको क्या चाहिए होता है? जी नर्स क्या करती है आपको? केयर Nurse is करते not हैं. house help. She nurtures you. Nursing is the word come nurturing ना. आपका पोषण करती है, पालन पोषण करती है, देखभाल करती है नर्स. मदर टेरेसा क्या काम करती थी? नर्सिंग का ही काम करती थी, इसलिए उनको मदर कहा गया है ना. मदर टेरेसा, मदर. I have been the witness to Mother Teresa's work once. एक पेशेंट मुझे याद है, नासिक के सेंटर में वो जब आई थी, तो HIV का उनका सेंटर है यहाँ पे मुंबई नाका पर.
imagine, this is like 25-30 years back. I'm into all this. So I went to see her, and then तो कोई नहीं थे, 2-4 लोग ही थे, एंड देन एक पेशेंट उनके पास से, शी वाज जस्ट पूछताछ कर, ऐसे नहीं नेताओं की जैसे कैसे है, क्या है, फोटो खींचा विचा, वो नहीं चला था, वो अपने अपना, शी वाज लाइक अपने अपने काम में है, कुछ उसके नो अडू आस पास असिस्टेंट ये वो कुछ भी नहीं, शी वाज लाइक आई मदर की विजिट है, बस खत्म। तो मदर अपना अपना काम करे, तो मैं जस्ट गया मिलने के लिए, तो मेरे दोस्त थे फ्रांसिस ने, सर जा बोले, तो वो वार्ड में मिलेंगे, तुम जाके मिल लो आप सब। So I wanted to offer my services to the HIV center as a home path. So I went to see, and then what happened, I tell you, मतलब कि एक पेशेंट HIV का वार्ड पूरा, और पेशेंट उल्टी करने का, तो देयर वाज नो पॉट, एंड पेशेंट, तो द लेडी शी ऑफर्ड हर हैंड, मदर टीजा के हाथ में HIV के पेशेंट ने उल्टी करता हुआ मैंने देखा हुआ, आई एम द विटनेस टू दैट। That is why nurses are not less than mothers, if not mothers. Hello, are you getting me? तो पोस्ट ऑपरेटिव आपको क्या चाहिए होता है ना, यू नीड पोस्ट ऑप केयर। क्या शब्द है, पोस्ट ऑप केयर बोलते हैं ना, Care, yes, yeah. प्लीज रिमेम्बर, पोस्ट ऑप केयर, पोस्ट ऑफ वॉच नहीं होता है, केयर। नर्सेस को ज्यादा आता है ना, आईसीयू में अगर आप जाओगे ना, क्योंकि मैं आईसीयू में भी काम किया हूँ, फिजिशियंस के साथ काम किया हूँ, है ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, इधर ऐसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मैंने काम किया हूँ, फिजिशियंस के साथ में, जो इंटर्न्स होते हैं ना, फिजिशियन जो एस्पायरिंग, जैसे फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में, तो उनके साथ काम किया, तो नर्सेस से ज्यादा सीखा होगा ना मैं। और जो एचओडी थे वो भी बोलते थे कि ये इससे सीखो, ये इसको पता है। तो वो जिस तरीके से इंट्यूबेशन वगैरह करती नर्सेस, हम लोग नहीं कर पाते हैं, समझ रहे हो? दैट इज वाई दे आर वेल पेड। अगर आप मिडिल ईस्ट में जाओगे तो नर्सेस का पेमेंट 2 लाख 3 लाख 5 लाख ऐसा है, ठीक है। तो नर्सेस इसीलिए होती, तो नर्सिंग, ओके प्लीज रिमेम्बर, तो दोनों को कोई नहीं है, इन्हीं को करना है दूसरों को नर्स। तो मैकफॉस इज अनदर nurses remedies, please remember, apart from cocculus. Please remember, if cocculus fails, use macphos, क्योंकि जिसको मां नहीं है वो दूसरों की मां बनता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जिसको प्यार नहीं मिला है वो बहुत प्यार बांटता है। तो मैकफॉस, मैंने जितने भी केसेस देखा, आर वेरी लविंग पीपल, आर वेरी मदरली पीपल। आई डोंट नो मैटरनिस्टिक एग्जैगरेटेड में मैकफॉस नहीं है, लेकिन आर वेरी लविंग पीपल, आर वेरी केयरिंग पीपल, दे आर वेरी मदरली पीपल, ओके। तो हर हाल में काम करेंगे ही करेंगे। मैक का अगेन दूसरा तो ऑर्फन ही था, बट उसको माँ मिल गई है, लेकिन बोथ वे चल रहा है प्रेम, ये भी समझो। वो माँ भी उनको प्रेम देती है, बच्चों ने भी वैसे रहता भी हुआ ना, मे बी बाप लाइक बड़े प्रिंसिपल क्वाइट, तो उसकी वजह से हुआ होगा, जो भी है उनके नसीब में भगवान ने दी अच्छी माँ। बट स्टिल माँ का तो एक लगता है कहीं ना कहीं तो फील होता ही होगा ना बच्चों को यार, सगी का तो, क्योंकि मैं देखा हूँ ना, कुछ एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पर थोड़ा तो डिस्क्रिमिनेशन आता ही है। हेलो, इतना भी तुम अनबायस्ड रह लो, वो थोड़ा सा तो आता ही है ना बायस, 1% तो आता ही है, और एक एक स्पेसिफिक उम्र के अंदर 1% बहुत ज्यादा मायने रख जाता है। हेलो, Yes, आई sir. एग्री। और माँ बनना, Yes. मैं तो खुद भी देख चुका हूँ ना, जस्ट आई एग्री, 2 years back only I lost my mom, but still no single day you forget your mom, है ना, सुख में दुख में हर जगह पे तुमको याद आती है। एनीवेज, सो मैकफर्स्ट समझ में आया। तो पेशेंट आपको फॉस्की जैसा लगेगा,
एक, और दूसरा उसको करना ही है। तो या पेशेंट आपको मैक की तरह लगेगा लेकिन सीकिंग लाइट है या क्लिंगिंग है, other way around also you can come, but to me I have seen MACPHOS through phosphorus, not through MAG. Through MAG I have been to MACCAR, MACMOOR, but not to MACPHOS. But through PHOS I have been to MACPHOS almost 90% of the times that I prescribe. If I prescribe 100 patients of MACPHOS, then I have gone through phosphorus 90 times and through MAG 10 times. And in MACCAR, MACMOOR, I have been through MAG only. आप समझ रहे हो? The entry, the evaluation to the prescription, the journey to the prescription of MAG. Hello? Are you with me, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Any questions? Any questions? Any questions? सर तो ये फॉस्फोरस जब हम सोचते हैं तो सीज फीलिंग आना चाहिए ना? नहीं, ऐसे जरूरी नहीं, लेकिन प्लीज ओके ओके सीज पे फॉस्फोरस सीज होने के बाद आपके पास आएगा, वो एक फॉस्फोरस आएगा, ठीक है? ओके हाँ प्लीज वो ये सब निकाल दो मन में से कि आर्सेनिक अनग्रेटफुल आएगा। मेरे पास में इतने ग्रेटफुल वाले पल्सटिला भी है, इतने ग्रेटिट्यूड वाले पल्सटिला है, इतने, बाप रे बाप, यू विल नॉट बिलीव, इतने हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज। ओके, और कोई? और हाँ, एक मैंने और एक मैकफॉस का और एक केस अभी मैं देख रहा हूँ, मेरे केस में कुछ तो याद है। डॉक्टर साहब, वो पेन किलर की दवा है ना, मेरे को बहुत नींद आती है उससे, गूंगी आ जाती सर मेरे को उससे। थोड़ा भी पेन किलर नहीं हो, मैं काम ही नहीं कर पाता। अब पेन किलर से आपको नींद आती है क्या? नहीं आती ना, थोड़ा सा ओवर द टॉप हो रहा है ना। एक रूब्रिक है, मैंने उस पर तब मैंने ये निकाला था मैकफॉस पे, जो समझा। देन आई वेंट एंड सॉ मैकफॉस, and I tell you one rubric I remember of MACPHOS then, as if intoxicated, huh? क्या है delusion? He is intoxicated. देखो उसमें भी मैकफॉस है, दिख रहा है। तो जरूरी नहीं है कि फिर दवाई से नींद आ रही तो आप डिलीजन बीइंग पॉइजन बाय मेडिसिन लेके हाईवेज पे जाओ। प्लीज रिमेम्बर, अगर दवाई से आपको नींद आ रही है, आपको नशे जैसा लग रहा है, तो आप वो लो कि सर मैं पेन किलर लेता हूँ तो मेरे को बहुत ऐसे गूंगी आती है। बहुत से लोग बोलेंगे आपको, तो ये रूब्रिक आप यूज करके देखो, और आपको क्या एक्सपीरियंस है मुझे जरूर बताना, ठीक है? प्लीज बताना, क्योंकि मेरा नंबर तो करीब करीब सबके पास है, नहीं तो नेट पर मिल जाएगा, डॉक्टर लियाकत डालोगे तो मिल जाएगा। प्लीज मुझे आपका एक्सपीरियंस शेयर करना, ठीक है? इस पर से भी मैकफॉस पे जाता हूँ मैं, थोड़ा ऐसा लगे। मैकफॉस, एसिडफॉस, फॉस्फोरस, ये रूब्रिक में यूज करता हूँ। हेलो, हेलो, क्योंकि फॉस्फोरस वैसे भी यस सर सेंसिटिव यस होता है, फॉस्फोरस सेंसिटिव भी होता है बहुत ज्यादा। नथूजा और पल्सटिलाइन सबसे ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, प्लीज रिमेम्बर। फॉस्फोरस भी बहुत डेलिकेट डार्लिंग होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि नोबल और सब है ना उसके अंदर, रीजन नोबल और क्या क्या ग्रेट पर्सन और ये वो कॉकटेश। तो ये नशा होना, नाजुकपना, तो नाजुक नाजुक बताना भी एक कॉकटेश का एक अदर एक्सप्रेशन है ना, कि नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो दवाई चलती नहीं है, थोड़ी सादा दवाई देना, सॉफ्टी देना मुझे सर, ऐसी नहीं चलती है। तो ये भी मैं कभी कभी कॉकटेश बोल के लेता हूँ, नॉट नेसेसरली आई विल टेक इट एज delusion delicate, delusion brittle, no, this also is type of नखरा, प्लीज रिमेम्बर। तो जो सर मैं पेन किलर जरा भी ले लूं तो मेरे को नींद आने लग जाती है, तो इसको भी मैं कॉकटेश की तरह लेता हूँ। अभी तो डायरेक्ट इंटॉक्सिकेटेड लेता हूँ, तो इजी हो जाता है। तो पेशेंट ने नशा शब्द यूज किया तो आप इंटॉक्सिकेटेड ले लो यूज। नींद, गूंगी आना, गूंगी इज नशा ओनली, तो आई टुक इट एज इंटॉक्सिकेटेड। उससे भी मैं मैकफॉस दिया हुआ है। जी, ओके, नो क्वेश्चंस। सर इस केस में रस्टॉक से कैसे डीडी करेंगे?
हाँ बेटा, रस्टॉक्स से कैसे डील करेंगे इस केस में? क्यों आ रहा है आपके मन में रस्टॉक्स, बताइए। सर रस्टॉक्स बोलता है ना कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, नहीं, मुझे ही रस्टॉक्स कर। का तो नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करूंगा नहीं। रस्टॉक्स का ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब झुक गया तो झुक जाऊंगा, मतलब उसको परवड़ता नहीं रस को थोड़ा भी झुक नहीं कर पाना। सर वो घर में बैठ नहीं हाँ, सकता, घर में बैठ नहीं सकता, मुझे ही काम करना है। हाँ, तो वो एंजाइटी चिल्ड्रन ना, केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट, यस सर। वो वाला होता है ना उसमें। इसलिए यहाँ पर उसने कहीं भी बच्चों का किसी का भी जिक्र नहीं किया, आप अगर देखोगे दोनों में भी। यहाँ पर कंडीशन ये थी कि द ड्यूटी आई हैव टू परफॉर्म, रेस्टॉक्स में द अर्निंग ही हैज टू गेट। गेटिंग मी? सर अभी यहाँ पर इसका भाई है, इसका बाप है, बाप की पेंशन है, भाई भी है, माँ भी अच्छी है, बट फिर भी इसको वो अंदर से फील है ना, पैथोलॉजिकल है ना ये फील। अब दादी का भी ऐसा है कि वो बोल सकती ना कि अबे झक मारो, तू कर ले शादी बड़े बच्चे को, मैं कब तक करूं, मेरी कमर टूट गई यार। बहन बहन कोई ना कोई होता है ना, ऐसा थोड़ी। यार सिविल में पढ़े रहो, सिविल में लोग देखते हैं, समझ रहे हो? ये फर्क समझो। रस्टॉक्स में डू और डाई वाला होता है कि मुझे ही करना है, नहीं करूँ तो सारे भूखे मर जाएंगे, वो बैंड वाला है ना, एंजाइटी उसका सिटिंग बेंड। स्टूपिंग वाला प्रॉब्लम होता है रस्टॉक्स में। ठीक है, सिटिंग बेड। यस कई सर। कई लोग बोलते हैं कि अगर इसीलिए मैं अपने आप को चलाता जा रहा हूँ कि अगर नहीं चलाऊंगा तो बिल्कुल ही बैठ जाऊंगा। वो हो गया रस्टॉक्स, वो रेस्टॉक्स। वो बैठ गया तो बैठ जाऊंगा। मतलब वो जबरदस्ती करता रहेगा कि अगर स्ट्रेच मतलब मैं करता है बैठ ना, गया। हाँ। स्ट्रेच स्ट्रेच करता है। करता है। राइट। सीपीएम में भी है वैसा, हम्म। वो बेड एग्रीवेट्स, ठीक है, बेड एग्रीवेट्स वाला मसला है सीपीएम। ओके, एक चीज और पूछूं। पूछो। इस केस से वैसा नहीं है, बट जैसे वो कई लोग बोलते हैं ना, नहीं आप ही ठीक करोगे, मुझे पता है। पहले भी मतलब एग्जाम्पल्स देते हैं कि पहले ये पर्सन उसी की फैमिली का ये ठीक हुआ था, वो ठीक हुआ था, टाइम लगा था, बट ठीक हो जाएगा, मुझे पता है आपसे ही ठीक होऊंगा, आप ही दवाई दो। और जैसे ये क्या कुछ है, मेडिसिन। ये क्या है? ये क्या है वो ही नहीं समझी मैं। आप यहाँ बताओ, पे आप मेरी बताओ। बड़ी सारी रेमेडीज ऑब्जेक्ट फेल। रीजनेबल है ना बेटा, ओके। लेकिन आप ही करो, ये हाँ, क्लिंगिंग। मतलब मुझे पता है कि आपसे ही ठीक होऊंगा और वो मुझे लिए पता जा है कि रहे हैं। आपसे ही ठीक होगा, ये है सुपरस्टिशियस। ओके। मुझे पता है कि आपसे ही ठीक होगा, ये सुपरस्टिशियस। और रीजन अगर देगा प्रॉपर तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। मतलब जैसे आपसे ही ठीक होऊंगा मुझे पता है, क्योंकि पहले भी हुए थे, उनको टाइम लगा था, कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है डजंट मैटर, बट मुझे पता है यहीं से ठीक होगा, तो वो ऑब्जेक्टिव लिए जा रीजनेबल, रहा है। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। तब तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लेंगे ना। Right. प्रॉपर रीजनिंग अगर दे रहा है तो फिर ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। तो इसमें हम होपफुल या पॉजिटिविटी भी लेंगे क्या? नहीं। बिल्कुल नहीं। देखो, सबसे पहले एक बात समझो, आप आशा निराशा की बात कब करते हो? हम्म। जहां पर प्रॉब्लम ऐसी आती है कि जहां पर अभी आशा नहीं बची है या थोड़ी आस बची है, तो कॉन्टेक्स्ट में यूज करो ना शब्दों को। यू टॉक अबाउट होप व्हेन द केस इज गेटिंग होपलेस। आर यू गेटिंग मी? हाँ जी। either by the disease or by financial state or by the family। नहीं क्या, जैसे अभी रिश्ते में कुछ आस ही नहीं बची है, इतना नहीं डॉक्टर साहब, अभी इतना बुरा हम लोग बात बोल चुके हैं कि अब आप आस नहीं है कुछ रिश्ते में। नहीं सर, सब ध्यान नहीं देते, लेकिन पति मेरे अच्छे हैं, तो थोड़े हैं, गाली गलौज करते हैं, लेकिन ध्यान भी रखते हैं, तो फिर आस है। तो ये आप कॉन्टेक्स्ट में पहले रूब्रिक को यूज करना सीखो सबसे पहले। कोई भी कॉन्टेक्स्ट में ना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं शब्दों को यूज करना है। तो आशा निराशा की बात निराशा वाले सिचुएशन में है, पॉजिटिविटी की बात या तो पर्सनैलिटी से आएंगी या अगेन ज्यादा सीवियर होते जाएगा। होप, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव,
और जैसे 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 निराशा बढ़ते जाएगी तो पॉजिटिव से ऑप्टिमिस्टिक पे आएगा, ऑप्टिमिस्टिक से होपफुल पर आएगा, होपफुल के बाद में डिस्पेयर पे आएगा। तो वो स्टेजेस से आएगा, वो स्टेजेस से गुजरेगा। समझ रहे हो? जी। ओके, थैंक यू। यस निशा। सर कैरी डिजायर टू बी कैरिड ओवर शोल्डर पे कैसे ड्यूटी करेंगे? कैरी डिजायर टू बी ओवर द शोल्डर मतलब आप ही ठीक करो, आपको बोझ लगने लग जाता है। सर उसने तो यही कहा ना आपसे कि सर आप ही ठीक करो, मैं आपके पास बड़ी आस से आई हूँ, आप ही ठीक कर दो सर। आस की चीज अलग है ना सर, आप ही ठीक करो, मुझे पता नहीं, ये हो गया जबरदस्ती गले पड़ के कांधे पे बैठ जा। सर जो कुछ भी करें आप ही आस करें सर। देखो, नहीं नहीं, लेकिन आस लेकर आना अलग चीज है ना, और गले चढ़ जाना हाँ अलग सर ये चीज बात है। सही। नहीं कुछ पेशेंट कहते हैं सर आप सर अब जो करना है सर आप ही करो, तो हाँ हाँ, सर ये कैरी डिजायर टू बी कैरिड ओवर शोल्डर। पॉसिबल है, पॉसिबल, लेकिन क्योंकि वो कई पेशेंट कहते हैं सर उसको कि अब तो अपने मैं यहाँ आप दिखा। को देखो, शोल्डर पर आपके उसके, लेकिन उसकी स्थिति वैसी, उसने उसको लगना चाहिए खुद को भी पेशेंट कि अब भगवान मैं कुछ नहीं कर सकता, अब आप ही के सहारे है सब कुछ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ना मैं अपना खुद का पैर भी नहीं उठा सकता। मतलब वो अपने आप को इतना इनकॉम्पिटेंट समझे कि आप मुझे आपके कांधे पर लेकर चलो या इवन पीठ पर लेकर चलो। वो इतना, जैसे आप जा रहे हो ना, कौन से वो अभी कश्मीर में कहा जाते हैं हम लोग, कौन सी यात्रा पे जाते हैं, अमरनाथ की अमरनाथ। यात्रा पर जाते हैं, तो जो चल नहीं पाते उनको पीठ पर लेकर जाते हैं ना, या कांधे पर लेकर हाँ जाते सर हैं। घोड़े पे जाते, तो घोड़े घोड़े पे जाते हैं। वो वाली अवस्था कि आप अपने आप को ले जाने के टोटली काबिल नहीं समझते हो, या आप अपने आप इतना आपका बोझ है कि बैंडी मैनू नहीं चलना यार, तू ही ले चल मेरे को मैं पैसे देता हूँ, चल मेरे को डोली में लेके चल। सर जो भी आपको क्या पैसा वैसा चाहिए सर, जो भी आप देखो सर, मैं कुछ नहीं करूंगा। ये भी कैरेटिजाइट भी डिसऑर्डर हो सकता है सर, क्या बिल बिल कितना चाहिए, आप पैसे की फिक्र मत करो सर, लेकिन जो करना आप करो, मेरे से कुछ नहीं होना। ये भी कैरेटिजाइट डिसऑर्डर होता है। जरूरी नहीं कि सर कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अभी आप ही मेरे को लेकर ठीक कर दो सर। तो दोनों भी होती है स्टेट, समझ रहे हो? तो बेगिंग के दो तरीके हैं जी जी सर। कि सर नहीं भाई सर एक माफ कर दो पेशेंट ना। है जो, हाँ, सर एक पेशेंट है जो सीकेडी का है, और वो हायर इंस्टीट्यूट से मतलब उसको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, उन लोगों ने डाटा लिख के दे दिया, डायबिटीज था और उसके बाद में उसको सीकेडी हो गया। तो सीकेडी के बाद सर वो ये हो गया कि उसका क्रेटिनिन 5.6 या 7 से ऊपर चला गया, तो उसको कोई रिलीफ नहीं मिला, उसको रेस्पिरेटरी ट्रबल भी हो रही है, प्लूरल इन्फ्यूजन भी है। तो एक दिन वो मेरे पास, किसी ने बताया होगा, तो मैं एक होम्योपैथ हूँ तो मेरे पास आया, तो मैंने उसकी सारी दवाएं बंद नहीं की, हमने कहा जो तुम्हारी दवाएं चल रही तुम चलाते रहो इसे, मैं कुछ दे रहा हूँ। तो मैंने उसको तमाम वो दिया, रिपर्टाइज करके दिया, तो उसको रात में उसको नींद आ गई। तो उसने कहा कि सर मुझे नींद आई, अब सर मुझे उम्मीद जग गई कि आप मुझे ठीक कर ले जाओगे, क्योंकि मुझे 1 महीना हो गया था मैं सो नहीं पाया था, मैं वहां की दवाओं से, अंग्रेज एलोपैथी दवाओं से। तो आप सर जो कुछ भी करो सर आप ही करो, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आप ही के पास रहेंगे। ये सर वर्जन था पेशेंट। ये सुपरस्टिशियस है। सर सुपरस्टिशियस। तो कैसे? सर मैंने पूछा आपसे ना कि या उसने तो कहा फिर ना कि सर। उससे भी, और दूसरा पॉसिबल ये है अनिल, जी मैग्नेटाइज्ड, इजी मैग्नेटाइज्ड एंड मैग्नेटाइज्ड डिजायर टू बी। ये इनफैक्ट सर मैग्नेटिज्म, मैग्नेटाइज, ये मैग्नेटाइज्ड डिजायर टू बी और मैग्नेटिज्म एमुलेट से ही, क्योंकि ये सर उसमें दो ही मैग्नेटाइज हो तीन गया दवाएं हैं, आपकी इससे। चाइना ग्रेफा, सर उसमें चाइना ग्रेफाइटिस 2 ही 3 दवाएं हैं मैग्नेटाइज, इजिली वे आप मैग्नेटाइज मैग्नेटाइज में। सुनो तो मेरी सर बात, इसलिए उसमें ये 8 मैग्नेटाइज हो दवाई। गया, ये मैग्नेटाइज हो गया है आपसे, क्योंकि इसको पहले कहीं भी नहीं मिला है वो, और आपसे फिर अब ये कि आप ही कर सकते हो, क्योंकि इसको कहीं भी नहीं मिला, जो उसको चाहिए था ना, वो कहीं भी नहीं मिला, तो वो आपसे जी मिल सर। गया, तो अब वो आपको जुड़ एक गया सर आपसे। चीज, सर उसने चीज और बोला है कि मैं वहां जाता हूँ तो मुझसे वो लोग बात भी नहीं करते हैं, बस वही पर्चा लिखते हैं, डाटा 50 मिलीग्राम खाते रहो, यही दवा 2 महीने खाओ चलेगी, बात भी नहीं करते। मैं कहता हूँ मेरी ये ये तो समस्या फैक्ट है, है मेरी ना सुनते यार, भी नहीं।
वो तो तो फैक्ट कम है। से कम आप सुनते तो हो मेरी बात। उसने कहा कम से कम मेरी बात सुनते तो हो आधा घंटा, मुझे समय तो देते हो आप कि हाँ मैं 15 मिनट सुनते हो मेरी बात, और मुझे दवा देते हो, मुझे रात नींद आ जाती है। और सर रोज कहता है सर वो दवा मुझे दे दीजिए, मेरे दीवान पे गिरा दीजिए, मैं ये उसको प्लेस मैग्नेटाइज्ड देता ही है, रहता हूँ। ये मैग्नेटाइज्ड ही है। जी वो सर। आपसे वही चाहता है ना, पॉजिटिविटी चाहता है ना, कि यार कोई बात तो सुने मेरी, मुझे समझे तो हाँ मैं सही, उसकी बात सुनता हूँ। जी सर। समझे तो सही। वही है ना ये, मुझे समझे। जी सर। जी सर। तो आप मुझे समझ रहे हो, सुन रहे हो, मतलब आप अपने हो ना। तो हाँ सर ये अपनापन कहता है आप। मैग्नेट, तो अपनापन आता ना उसमें। जी सर। तो ये मैग्नेटिज्म वाला आता है ये। और दूसरा, अब सर नेचर बार लव बार वही वाले लोग। लोग भी ऐसी, नेचर लव वाले लोग भी ऐसी बात करते हैं कि डॉक्टर साहब आप कितने अच्छे से बात करते हो। सर अभी डॉक्टर लोग जी बात सर। नहीं करते सर ढंग से, आप देखो कितने अच्छे से समझाते हो, सुन लेते हो। ऐसा ही डॉक्टर चाहिए जी सर, सर। ये नेचर लव होता है, उनको जी नेचर सर। चाहिए, समझ रहे हो? जी सर। ये नेचर लव भी होता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच लेकिन सर। देखो, फॉलो वाले वर्जन से रूब्रिक पर पहुंचकर उससे प्रिस्क्राइब करना डेंजरस होता है ना। जी। ये दो धारी तलवार है, कट भी सकती है, जी काट भी सर। सकती है। तो फॉलो वाली चीजों से हो सके तो प्रिस्क्राइब मत करो। जी सर। फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन वाला जो इंप्रेशन था, उसी पर टिके रहोगे तो ज्यादा आसान होगा। तो सर उसको बार बार दवा मांगता है वो, जैसे कहता है सर वही लेकिन दवा वो पिला तो दीजिए होगा, मुझको। नहीं नहीं नहीं, वो देखो आप डिरेल हो रहा है मेरा टॉपिक, अपन कहीं और कुछ और पढ़ रहे थे, है ना। जी सर। तो जी। मैंने आपको जो बताया ना, कि फॉलो वाली चीज पर जी। प्रिस्क्राइब मत करो। नहीं सर पहला हमारा जो उसका टॉपिक था था, करियर डिजायर टू बी करियर शोल्डर ओवर द फिजिशियन। नहीं नहीं सर नहीं, हम लोग इसमें करियर। कैरेक्टर, इसमें नहीं है नहीं सर कैरेक्टर, फॉलो वाली हाँ चीज इसमें से नहीं सर पहले। कैरेक्टर। सर जो हम लोग टॉपिक पे बोल रहे थे सर, आपने कहा था, उसने कहा कि मैं आपके पास आस लेकर के आया हूँ, उम्मीद लेकर के आया हूँ, जो कुछ भी करना है आप ही करो। तो आपने कहा सर इसमें इसको मैंने लाइट डिजायर लिया है, आपने डार्क बताया मतलब, और हम लोगों को राइट ले गए डिजाइन, उधर, आप बहुत बढ़िया। हाँ बहुत अच्छा सर आपने एक्सप्लेन किया, उस उधर कम से कम लाइट की तरफ आज आपने लाइट डाल दिया, लाइट डिजायर पर आपने लाइट डाल दिया सर। कि लाइट, आपने एंजाइटी डार्क से श्याम श्याम से काले से, और सर हमको लेके चले गए लाइट डिजायर पे। सर ये तो बहुत, आज आपकी बात से लाइट डिजायर नहीं भूलेगा सर, ये इतना बढ़िया बता दिया सर आपने। थैंक यू। ठीक, तो सर ओके, थैंक यू वेरी मच, आपने लाइट आज लाइट डिजायर पर आपने लाइट डाल दिया सर, अब थैंक लाइट यू, डिजायर नहीं भूलेगा। थैंक यू। यस निशु। Thank you so much, Liaquat. Such a very nice, simplistic understanding of MacPhos. I really like that जिसको माँ नहीं है वो she becomes a mother to everyone. To remember along with calculus. You look at yourself, look at me, Nishu. We both are the best examples of it. So nice, also reiterating the fact of delusion Daishi must very beautiful. So we'll never, forget MacPhos. Always think of MacPhos whenever I will enter into phosphorus. And delusion intoxicated. This is something very new. Thank you for teaching this new aspect So of I this. promised you, na, every time something new. Yes, this is fantastic. Delusion intoxicated. Nahi to we get into poisoned by medicine and injured and so many things. So Yeah. looking forward for more new aspects of remedies and rubrics from you. Thank you so much. Thank you everyone for connecting, and let's see you all next Thursday. Thank you very much. Thank you. थैंक यू वेरी मच। Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. थैंक यू Those मैम, who want to थैंक be यू। added to the group, and they can contact Dr. Pranita. Her number is there on flyer. Thank you. Thank you, sir.